Hello everyone. Today we are going to discuss Unit 7, that is electronic CRM. That means ਆਪਾਂ through online ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ online service ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ online ਦੇ through ਆਪਾਂ अपना customer relationship build up करना. That is your electronic CRM. So what is electronic? That is e-commerce or EC is the exchange of business information using electronic formats including electronic data interchange, electronic mail, electronic bulletin boards and electronic fund transfer. That means ਆਪਾਂ कोई अपनी online चीज़ां यूज़ कर रहे हैं, electronics related चीज़ां यूज़ कर रहे हैं कस्टमर नाल रिलेशन बिल्डअप कर लें या आप इलेक्ट्रॉनिक कमर्स इज बेसिकली आप ट्रेड की कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ां ना यूज़ कर रहे ठीक है ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज आ जाती है थोड़ी मेल्स वगैरह आ जाती या फंड ट्रांसफर्स ऑल कम्स इन इलेक्ट्रॉनिक कमर्स. E-commerce technologies are designed to replace traditional paper-based workflow with faster, more efficient and reliable communications between computers. ठीक है कहते हुंदा की है ई-कमर्स टेक्नोलॉजीज विच की हुंदा है कि आपां की कीता है पेपर वर्क दैट मीनस थोड़ा जो रिटन वर्क है हार्ड वर्क है पेपर दा रिकॉर्ड्स रखना बुक्स दा रिकॉर्ड रखना इनू आपां की करता रिप्लेस करके फास्टर ते थोड़ा जो एफिशिएंट वे है कम्युनिकेशन करन दा आपां ओ ले आए दैट मीनस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है so to conduct business in the current environment using e-commerce technologies requires that a business have access to a computer and a modem. so कहंदे कि ये बिजनेस एक करंट एनवायरनमेंट विच यूज़ करन वास्ते ठीक है ई-कमर्स टेक्नोलॉजीज की चाहिए ने विच कंप्यूटर दा एक्सेस चाहिए ठीक है. तो दे आर सेइंग कि अगर आपां करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब नाल चलना है अगर आपां ई-कमर्स टेक्नोलॉजीज की गल करिए तां कि है it is very important to have the access of the computers. Next comes e-CRM, that means e-commerce जो है ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ electronic ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that means electronic customer relationship management. So e-commerce actually began in the 1970s where large corporations started creating private networks to share information with business partners and suppliers. ਕਹਿੰਦੇ e-commerce actually ਕਦੋਂ start ਹੋਈ ਸੀ 1970s ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ corporations organization ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ they started creating private networks. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ information अगर वो share करनी है ठीक है बिजनेस पार्टनर सर अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो उन्होंने की किया अपने प्राइवेट नेटवर्क्स ओपन कर ले. दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. इलेक्ट्रॉनिकली आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू टू सप्लायर्स टू बिजनेस पार्टनर्स तैनू आप कहने इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. Transmitted standardized data that streamlined the procurement process between businesses so that paperwork and human intervention were nearly eliminated. So they are saying कि main चीज़ की है which process which electronic data interchange which कि आप standardized data की कर रहे हैं जो साडा असीं समान कुछ लेना है कोई बिजनेस विच आपां कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है दैट मीनस आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार कर लिया आपां उस अकॉर्डिंग ही बिजनेसमैन नूं ये चीज़ां दिन्ने इन्फॉर्मेशन इलैक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करते हैं ताकि आपां पेपर वर्क हो गया ह्यूमन टेंडेंसी जो है वो जो कि इन्नी रिकॉर्ड्स नहीं बना पाती है इन्ना चीज़ माइंड विच नहीं रख पाती. सो ये चीज़ एलिमिनेट करने वास्ते वी स्टार्टेड इलैक्ट्रॉनिक CRM. EDI is still in place and so effective at reducing cost and improving efficiency that an estimated 95% of the Fortune 1000 companies use it. सो कह रहे हैं कि जो EDI है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है वो इस टाइम अजे भी प्रेजेंट है ठीक है तो बहुत ही इफेक्टिव है बिकॉज ये थोड़ी कॉस्ट नू रिड्यूस करता है थोड़ी एफिशिएंसी नू इंप्रूव करता है थोड़ी एफिशिएंसी नू इंक्रीज करता है ठीक है. सो दे आर सेइंग कि जो ये काफ़ी कंपनीज ने ऑलमोस्ट 1000 कंपनीज जो ये चीज़ नू अजे भी यूज़ करती है. The major benefits that accrue new sales and account opportunities, quicker, smarter decision making and better efficiencies leading to significant improvement in customer service. So they are saying कि major benefit की है major benefit जो आंदे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CRM यूज़ करने ਵਿੱਚ तो थोड़ी सेल्स न्यू सेल्स के फॉर्मेट तैयार हो जाते हैं ठीक है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ने
बहुत क्विक ते स्मार्ट डिसीजन लै पाने आ, बहुत अच्छी एफिशिएंसीज मिल रही ने। दैट मीनस ये ओवरऑल तुहानू की डील करदियां ने, तुहाडा इंप्रूवमेंट करदियां ने कस्टमर सर्विस वास्ते, ठीक है। सो बेसिकली मेन कोर बेनिफिट्स की ने, पहली चीज़ एक्सटेंडेड कस्टमर रिलेशनशिप, दैट मीनस तुहाडा रिलेशन बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता है कस्टमर नाल। कॉम्पिटिटिव सर्विसेज डिलीवरिंग हाई वैल्यू, दैट मीनस अच्छी सर्विस प्रोवाइड करांगे आपां, ठीक है, एक तुहानू हाई वैल्यू क्रिएट मिलती है। इंप्रूवड प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवरी प्रोसैसेस, ठीक है, प्रोडक्ट के जो सर्विस जो डिलीवरी प्रोसैस है तुहाडा वो बहुत अच्छा हो जाता है ECRM के थ्रू। बैटर कस्टमर नॉलेज एंड इनसाइट, ठीक है, अच्छी नॉलेज अस कस्टमर को दे पाने। स्मूथ एफिशिएंट कस्टमर सर्विस, ठीक है, बहुत अच्छी स्मूथ सर्विस आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे। दैट मीनस एक स्मूथ, एक बहुत ही फ्लैट वे ना, स्मूदर वे ना तुहाडा काम चलता रहता है। नैक्सट कम स्कोप ऑफ ECRM, दैट मीनस इस विच की चीज़ां इंक्लूड होंदियां ने ECRM विच। पहली चीज़ आती है सेल्स, supports key functions such as contact management, opportunity management, forecasting and 360-degree view of all customer accounts and interactions. Automate and organize Salesforce activities for focused selling and closing. So they are saying कि जो ECRM है तो की कर दिया है की फंक्शन को सपोर्ट कर दी। दैट मीनस थोड़ा जो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट होगी, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट होगी, दैट मीनस जो फोरकास्टिंग कर दी है, थोड़े कस्टमर ਨਾਲ कॉन्टैक्ट कर दी है, उन्होंने ये चीज़ सपोर्ट कर रही है। ऑटोमेट एंड ऑर्गेनाइज सेल्सफोर्स एक्टिविटीज़ फॉर फोकस सेलिंग एंड क्लोजिंग, दैट मीनस असी ऑटोमैटिकली जो चीज़ आप करनी है वो, या ऑर्गेनाइज सेल्सफोर्स एक्टिविटीज़ आप करनी, ऑर्गेनाइज वे ना आप जो सेल्स एक्टिविटीज़ करनी आप सैलिंग या क्लोजिंग वैसे आप चीज़ लिखते हैं। नेक्स्ट कम्स जो मार्केटिंग, ऑब्वियसली डिटेल स्केड्यूल्स एंड टास्क, मेनटेनिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो आप की टास्क की तेरे स्केड्यूल्स होने चाहिए ने, कॉन्टैक्ट लिस्ट की होएगी, एक्टिविटी लॉग्स की होंगे, सारा कुछ जो है आप किवें प्रोडक्ट में मैनेज करना है, रिसोर्स में मैनेज करना है, अकाउंट्स में किवें मैनेज करना है, इन्फॉर्मेशन आप किवें करना है, सारा कुछ तुहानू की करती है और ये हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कम्स चैनल मैनेजमेंट, सपोर्टिंग की फंक्शंस एज campaign management and analysis and customer demographic analysis. So they are saying कि ये थोड़े बहुत important functions की functions ਨੂੰ support कर रही, थोड़े campaign management, थोड़े organization ਦੀ management ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ properly analyze ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। customer demographic analysis, that means ਆਪਾਂ customer ਦੀ proper detail ਕਰਨੀ ਕਿ customer ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ taste and preference ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ properly ਇਹ analyze ਕਰਾਂਗੇ। फोर्थ कम्स जो कस्टमर सर्विस, ऑब्वियसली CRM विच की है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, कस्टमर ਨੂੰ एफिशिएंटली सपोर्ट करके उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करके। नेक्स्ट कम्स फिफ्थ पॉइंट इज योर पार्टनर मैनेजमेंट, ट्रैक्स एंड एनालिसिस सेल्स मेड बाय पार्टनर्स एंड ट्रैक कॉन्टैक्ट्स एसोसिएटेड विद डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अदर चैनल पार्टनर। सो दे आर सेइंग कि ये भी पार्टनर मैनेजमेंट की हो रही है कि ट्रैक कर दी है तो एनालाइज कर दिया है कि इन्होंने पार्टनर्स, इन्होंने कॉम्पीटिटर्स किवें डील कर रहे हैं, उन्होंने डीलर्स जो ने वो किवें नाल एसोसिएटेड ने, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए या कोई होर अदर चैनल पार्टनर्स, ये जो ECRM है ये भी ये हेल्प आउट होंदा है। नेक्स्ट कम्स जो चैलेंजेस इन ECRM, ऑब्वियसली तुहानू चैलेंज फेस करना पैंदा है ECRM दे विच। पहली चीज़ आ गई सिक्योरिटी, ऑब्वियसली अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड and customers must be able to select a mode of payment and the software must verify their ability to pay. So they are saying कि सिक्योरिटी चाहिए होंगी, सानू सिक्योरिटी इस्टैबलिश करनी पैंदी है, ठीक है, जो तुहानू दसे कि कस्टमर ने केड़ा मोड सिलेक्ट करना है पेमेंट करन टाइम, ठीक है। सो ये जो सॉफ्टवेयर है ये जरूर वेरीफाई करे इस चीज़ को, ये एबिलिटी को वेरीफाई करे, सॉफ्टवेयर मस्ट वेरीफाई देयर एबिलिटी टू पे, ठीक है, हैगी भी है पे करन दा, ये सॉफ्टवेयर थोड़े वेरीफाई कर लेगा। दिस कैन इनवॉल्व क्रेडिट कार्ड्स हो सकते, थोड़े इलैक्ट्रॉनिक कैश और परचेज ऑर्डर्स, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर सच एज साइबर कैश एंड माइक्रोसॉफ्ट वॉलेट कैन वेरीफाई द परचेजर एंड द परचेज। नेक्स्ट कम्स द डिजिटल सर्टिफिकेशन, दूसरा चैलेंज की है कि डिजिटल सर्टिफिकेशन आप करवानी है, दैट इज द मेथड यूज टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी इज बेस्ड अपॉन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिजिटल सर्टिफिकेट। कहते अगर आप ये मैथड यूज करना है तो वास्ते सानू एक आइडेंटिटी चाहिए है, तो वो आइडेंटिटी का नाम की है, ऑब्जेक्ट का नाम की है डिजिटल सर्टिफिकेट।
A digital certificate simply ties together a public key with say the name and address of the customer or merchant, ठीक है। और ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ सर्टिफिकेट ਵਿੱਚ कस्टमर या मर्चेंट ਦਾ ठीक है ਤੁਹਾਡਾ name ਤੇ address ਹੋਏਗਾ। The trick is that these certificates are signed by a trusted third party in which the same way the passport is signed by the government that issues it। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ जो हैगी है वो ये चीज़ की सर्टिफिकेट ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਫਿਊਚਰ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ CRM, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਚੇਂजेस ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਸਰਟਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦ ਫੋਰਸਿਸ that determine the web's winners and losers are just taking shape and technological advances could add even more uncertainty. On the downside, some experts predict that it will be increasingly difficult for smaller companies to establish their presence। Obviously ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਨਸਰਟਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਟਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਸਮਾਲਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਪਾਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। Public companies and traditional brand name retailers have deep pockets and a name recognition that will make it difficult for the smaller sites, thereby forcing them to compete with the big firms। So कहते public companies जो नहीं है, traditional brand नहीं, ठीक है, retailers ने, they have deep pockets and name recognition that will make it difficult for, कहते उन्होंने इन्ना नाम है, उन्होंने अपनी इन्नी जगह बना ली है, अपनी इन्नी recognition बना ली कि जो कि स्मॉल जो कंपनीज उन्होंने वास्ते अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल है। On the upside, nearly all experts believe that overall e-commerce will increase exponentially in coming years। So they are saying कि आने वाले टाइम ਵਿੱਚ ਇਹ सोचते experts कि जो e-commerce है और अपनी increase आने वाले टाइम ਚ e जो commerce है e-CRM में और increase हो जाएगा। Next, designing e-CRM. Some CRM companies have web enabled their existing application and call it internet ready. So others have redesigned it from the bottom so that it is referred as to a web application rather than a client server application that can be viewed on the web। कहते जो CRM कंपनीज ने ठीक है web enabled किया है, ठीक है, अपनी existing application जिन्होंने ਆਪਾਂ कहने आ internet ready। सो कहते अदर्स ने कि रीडिज़ाइन किया है, रीडिज़ाइन इट फ्रॉम द बॉटम, तो उन्होंने शुरू तो रीडिज़ाइन किया है, तो उन्होंने इनू की नाम देता है वैब एप्लीकेशन रादर दैन उन्होंने क्लाइंट या सर्वर एप्लीकेशन आप बोलिए। दीज आर द फंडामेंटल आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस। मेयर accessibility from a browser does not turn a CRM application into e-CRM। So for technology to fulfill the promise of making the desired customer activity possible, the invisible technical details really matter। कहते आप अगर टेक्नोलॉजी ने फुलफिल करना है, प्रॉमिस फुलफिल करना है कि आप डिजायर्ड कस्टमर एक्टिविटी पॉसिबल कर रहे हैं, तो फिर इनविजिबल टेक्निकल डिटेल्स रियली मैटर, ठीक है। आप इनविजिबल चीज़ें जो आप सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ थोड़ी कोई चीज़ जो है विदाउट एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं जो ठीक है जो आप देख नहीं पा रहे चीज़ें, ठीक है, सो वो भी चीज़ें बहुत मैटर करती है। एग्जाम्पल है, if one wants to have an application that is optimized for the internet security activity, it uses HTML that is accessible from either desktop or palm or even laptop। So it can be accessed securely using internet security protocols that are receivable via TCP IP and so on। So कहते अगर किसी ने एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, जो आप इंटरनेट सिक्योरिटी एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, तो इट यूजेस HTML दैट इज़ असेसिबल फ्रॉम HTML आप यूज़ करेंगे जो कि आप डेस्कटॉप थोड़ा पाम हो गया या आप लैपटॉप तो भी असेसिबल हो सकती है। सो दैट मीन्स आप सिक्योरली आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट कम्स मॉड्यूल्स इन e-CRM, दैट इज़ मॉड्यूल्स की किन्ने CRM विच पहला आंदा है सेल्स एप्लीकेशन, ठीक है। So that is the cornerstone of CRM is CFA, that is Salesforce Automation। The thrust of SFA is that automating the fundamental activities of sales professional, ठीक है। आप इंटरनली या फील्ड में जा रहे हैं तो सानू Salesforce Automation उत्ते की आप ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। कॉमन एप्लीकेशन विच केड़ी हुंदी ने कैलेंडर एंड शेड्यूलिंग,
कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट मैनेजमेंट आप करनी है, इंसेंटिव्स कैलकुलेट करने आप अपॉर्चुनिटी एंड पाइपलाइन मैनेजमेंट, सेल्स फोरकास्टिंग, दैट मीनस ऑल रिलेटेड टू योर सेल्स थोड़ी होगी की हो सकती है सेल्स विच आप वो सारी चीज़ें ये कंडक्ट कर दिया। नेक्स्ट योर मार्केटिंग एप्लीकेशन, they form the newest breed of application in the CRM space. These applications complement SFA applications and provide certain capabilities unique to marketing. Common applications include the following. की होंगी applications ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ web based या traditional marketing campaign planning या collateral generation and marketing materials management. ऑब्वियसली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट आंदा थोड़ा वैब बेस्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन प्लान, दैट मीनस जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है आप थ्रू कंप्यूटर्स थ्रू वैब आप जो कैंपेन प्लानिंग करते थे कि वो आएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना ਤੇ एनालाइज करना कि कितनी सही बनी है। दूसरा कोलेटरल जनरेशन एंड मार्केटिंग मटीरियल्स मैनेजमेंट, ठीक है। कोलेटरल मीनस कंबाइन करना, वो कंबाइन करके आप की चीज़ें जनरेट कीतियां ने या मार्केटिंग मटीरियल मैनेजमेंट आप कितना रेडी किया है। थर्ड पॉइंट लिस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट, प्रॉपर लिस्ट तैयार करनी। फोर्थ इज बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, मार्केट में देखना सको किन्ने फंड्स ने आप सानू किन्नी साडी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो सकती है। नेक्स्ट मार्केटिंग इनसाइक्लोपीडिया, दैट इज रिपोजिटरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन कि आप देख लिया इनसाइक्लोपीडिया, दैट मीनस पूरी डिटेल कड़ी प्रोडक्ट बारे वो प्राइसिस किवें ने, कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन कट ली आप। एंड लास्ट इज योर लेड ट्रैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट, लीड की है थोड़ी उन्होंने आप ट्रैक करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन के मैनेजमेंट आप सारे देखेंगे। नेक्स्ट कम्स योर कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट एप्लीकेशन, so these applications have gained a major importance for effective customer retention and in many cases profitability depends on providing superior service। so कहते ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंस गेन कर ली एप्लीकेशंस ने, ठीक है। तो इफेक्टिवली अब कस्टमर अगर आप रिटेन करना है तो प्रॉफिटेबिलिटी में डिपेंड करना है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज एप्लीकेशंस आर टिपिकली डिवेलप्ड थ्रू अ कॉल सेंटर इन्वायरमेंट और ओवर द वैब फॉर सर्विस, ठीक है। दैट मीनस कहते हैं यूजली आप कितने यूज़ कर सकते एप्लीकेशन थोड़ा कॉल सेंटर इन्वायरमेंट होवे तां या आप वैब फॉर सेल्फ सर्विस होवे तां। सो कॉमन एप्लीकेशन केड़ी आती है थोड़ी कस्टमर केयर आ गया, इंसीडेंट डिफेक्ट एंड ऑर्डर ट्रैकिंग आ गया, फील्ड सर्विस या प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन डाटाबेस, रिपेयर स्कैड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग, आप कुछ रिपेयर करना उधर आप स्कैड्यूलिंग कर ली सारी, उस टाइम उन्होंने किवें डिस्पैच करना वो आएगा ये, सर्विस एग्रीमेंट्स आगे एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड लास्ट कम्स योर सर्विस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, आप कोई भी तो कोई रिक्वेस्ट चाहिए उन्होंने प्रॉपरली आप किवें मैनेज करना। नेक्स्ट इज योर बैरियर्स, ठीक है। इफेक्टिव कस्टमर इंटरनेट अडॉप्शन, दैट मीनस ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਲॉज, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲॉस ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ योर लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। कई बार की होंगे कस्टमर जो ने वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। उन्होंने कॉन्फिडेंस लैवल घट होंगे कि पता नहीं वो चीज़ सही होएगी कि नहीं होएगी अगर आप ऑनलाइन चीज़ मंगवा रहे हो। ओबवियसली ਅਸੀਂ बहुत केसेस सुने होंगे कि हाँ ਅਸੀਂ ऑनलाइन मंगाया चीज़ मंगवाई कुछ सी आई कुछ या ਉਹਦੀ क्वालिटी वो बैटर नहीं सी। सो दैट इज़ कस्टमर का वेरी लैक ऑफ इंटरस्ट होंगे। कॉपी कैट्स, since the internet reaches millions of people every day all over the world, so it is essential to stay ahead of the competition। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜੋ ਹੈ ਕਿ millions of people ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, competition which lead करिए। So one of the problems with doing business on the internet is that it can be expensive to copyright or patent your website ideas। कहते सब तो महंगी चीज़ की लगती है कि बहुत एक्सपेंसिव हो सकता अगर आप कॉपीराइट या पेटेंट लेने, ठीक है। बट अगर कॉपीराइट पेटेंट नहीं लेंगे ताकि ये तुहानू सारी चीज़ को कोई ना कोई कॉपी कर लें। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, पहली चीज़ आ गई वायरस थ्रेट। ऑब्वियसली थोड़ा कोई डाटा पे है कोई चीज़ इंस्टॉल की है, ठीक है। अगर कंप्यूटर च वायरस आ गया तो थोड़ा सारा सिस्टम विच डेटा जो स्टोर है वो की होता है खराब हो जाता है, दैट इज़ योर वायरस थ्रेट। नेक्स्ट थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इट इज़ मे बी पॉसिबल कि थोड़ी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैगी है, ठीक है, थोड़ा नेम एड्रेस क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह जो भी थोड़ी चीज़ें ने वो भी की हो जाए थेफ्ट, चोरी हो जाए, कोई चीज़ उन्होंने नोट कर ले। लास्ट कम्स डिप्रेशन, लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन। So social networking sites can also lead to depression as
ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਟੈਂਡ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ देयर ਲਾਈਫਸ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ योर डिप्रेशन, loneliness and social isolation। ठीक है, so this is all about this chapter ECRM, that means electronic CRM, that means कि ਆਪਾਂ with through online ਆਪਾਂ अपनी books अपने hard चीज़ों ਦਾ material जो है ਉਹਨੂੰ easy ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ eliminate ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ system ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Thank you।